اور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ عرفان حیات باجوہ صدر لاہور بار ایسوسیشن منتخب ہو گئے۔ نئے منتخب صدر عرفان حیات باجوہ حامد خان گروپ کے امیدوار تھے۔ منتخب صدر عرفان حیات باجوہ نے 3559 ووٹوں سے جیت اپنے نام کی۔ لاہور کینٹ سیٹ پر زاہد محمود گل نائب صدر منتخب ہوئے۔ زہیب خان 6915 ووٹ لے کر فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے۔ نعمان گوریا 1865 ووٹوں سے لائبریری سیکرٹری کی سیٹ کے لیے منتخب۔ بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات میں کل 6915 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ عرفان حیات باجوہ صدر لاہور بار ایسوسیشن منتخب۔ نئے صدر منتخب عرفان حیات باجوہ حامد خان گروپ کے امیدوار تھے۔ منتخب صدر عرفان حیات باجوہ نے 3559 ووٹوں سے جیت اپنے نام کی۔ لاہور کینٹ سیٹ پر زاہد محمود گل نائب صدر منتخب ہوئے۔ زہیب خان 6915 ووٹ لے کر فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے، جبکہ نعمان گوریا 1865 ووٹوں سے لائبریری سیکرٹری کی سیٹ کے لیے منتخب ہوئے۔ بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات میں کل 6915 ووٹ آج کاسٹ ہوئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ عرفان حیات باجوہ صدر لاہور بار ایسوسیشن منتخب ہوئے۔ نئے منتخب صدر عرفان حیات باجوہ حامد خان گروپ کے امیدوار تھے۔ منتخب صدر عرفان حیات باجوہ نے 3559 ووٹوں سے جیت اپنے نام کی۔ لاہور کینٹ سیٹ پر زاہد محمود گل نائب صدر منتخب ہوئے۔ زہیب خان 6915 ووٹ لے کر فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے۔ محنت کی اور لاہور بار کے غیور وکلا نے اپنی ووٹ کی طاقت سے ان قوتوں کو ہرایا جو قوتیں سمجھتی ہیں کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور آج کی جیت تسلسل ہے اس جیت کا جو پنجاب بار کونسل میں لاہور بار ایسوسیشن کے وکلا نے 16 میں سے 11 سیٹیں حامد خان اور آئی ایل ایف کو انہوں نے جتوائیں، اور وہ اپنی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوگی، یہاں پہ عام شخص جو ہے وہ اسی طرح پستا رہے گا۔ ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے مکمل جدوجہد کریں گے رول آف لا کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، اور انشاءاللہ 26ویں 27ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے۔ اور ہم ہر اس فورم کے اوپر خصوصاً لاہور بار ایسوسیشن اپنی تمام تر قوت کو لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ عرفان حیات باجوہ صدر لاہور بار ایسوسیشن منتخب ہوئے۔ نئے منتخب صدر عرفان حیات باجوہ حامد خان گروپ کے امیدوار تھے۔ منتخب صدر عرفان حیات باجوہ نے 3559 ووٹوں سے جیت اپنے نام کی۔ لاہور کینٹ سیٹ پر زاہد محمود گل نائب صدر منتخب ہوئے، جبکہ زہیب خان 6915 ووٹ لے کر فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ مزید اس بارے میں جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کے لیے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پروفیشنل گروپ یعنی حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار عرفان حیات باجوہ مجموعی طور پر 3559 ووٹ لے کر لاہور بار ایسوسیشن کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل آسما جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار ادیب اسلم بھنڈر 3154 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ تیسرے امیدوار شاہد جمال بٹ 122 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ اسی طرح سے دیگر نشستوں پر بھی نتائج کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ جیتنے والے جو امیدوار ہیں جشن منا رہے ہیں، ان کے سپورٹر یہاں پر موجود ہیں جو کہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ جیتنے والے امیدوار کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو باقی جو امیدوار ہیں ان سے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائب صدر کی نشست پر میاں طاہر منیر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ سینئر نائب صدر کی نشست پر ہمایوں ظہیر بھٹی کامیاب قرار پائے ہیں۔ اسی طرح سے نائب صدر ماڈاٹون کی سیٹ پر آصف کنول کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ نائب صدر کینٹ کی سیٹ پر زاہد محمود گل کامیاب قرار پائے ہیں۔ اور یوں لاہور بار ایسوسیشن کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر لاہور بار ایسوسیشن میں کے الیکشن میں 6915 ووٹ کاسٹ ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر 15851 رجسٹرڈ ووٹر تھے جنہوں نے اپنا حق رائے
कामयाब करार पाए हैं। आपका शुक्रिया इशफाक। आपको बता रहे हैं लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इरफान हयात बाजवा सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुंतखब हुए, जबकि नए मुंतखब सदर इरफान हयात बाजवा का ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से है। मुंतखब सदर इरफान हयात बाजवा ने 3559 वोटों से जीत अपने नाम की। लाहौर कैंट सीट पर जाहिद महमूद गुल नायब सदर मुंतखब हुए और जुहैब खान 6915 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। नुमान गोराया 1865 वोटों से लाइब्रेरी सेक्रेटरी की सीट के लिए कामयाब करार पाए। बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में कुल 6915 वोट कास्ट हुए। आपको बता रहे हैं लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इरफान हयात बाजवा सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए। नए मुंतखब सदर इरफान हयात बाजवा हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार थे। मुंतखब सदर इरफान हयात बाजवा ने 3559 वोटों से ये जीत अपने नाम की है। और अगर हम बात करें लाहौर कैंट की सीट पर, तो उस पर जाहिद महमूद गुल नायब सदर कामयाब करार पाए और जुहैब खान 6915 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर, बताइएगा। बार एसोसिएशन के इंतखाबात में जो रिजल्ट है उसका अनाउंस किया गया है और सदारती उम्मीदवार इरफान हयात बाजवा जो है वो कामयाब हुए हैं, जबकि कुल टोटल वोट जो है वो 6915 कास्ट किए गए हैं। सदारती उम्मीदवार अदीब असलम बिंडर भी जो है वो दूसरे नंबर पर आए, जबकि सदारती उम्मीदवार इरफान हयात बाजवा ने 4995 वोट हासिल किए, जबकि सदारती उम्मीदवार अदीब असलम बिंडर ने 3254 वोट जो है वो हासिल किए हैं। नायब सदर की जो कैंट की सीट है, इस पर जाहिद महमूद गिल कामयाब हुए हैं, जबकि नायब सदर मॉडल टाउन सीट पर जो है वो आसिफ कमल खान कामयाब हुए हैं। नायब सदर की नशिस्त पर मियां ताहिर मुनीर कामयाब हुए हैं, जबकि जो टोटल वोट है वो सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक बिलादातुल वोटिंग हुई और बायोमेट्रिक के निज़ाम के मुताबिक इसको जो है वो वोट किया गया और किसी भी किस्म का जो है वो वोट दूसरा नहीं डाला गया। जबकि जब जो खवातीन हैं उन्होंने भी पुरजोश अपना वोट कास्ट किए और दीगर जो इसमें शामिल थे उम्मीदवार, उन्होंने भी जो है वो बीच में अपनी सारा दिन अपनी कैंपेन करते रहे और कैंपेन के दौरान जो है वो उनके जो दीगर है वो भी शामिल रहे। और आपका शुक्रिया अबू बकर। आपको बता रहे हैं लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया और इरफान हयात बाजवा सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुंतखब हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के वफ्द की मुलाकात हुई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गवर्नर पंजाब को मसाइल से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर अमल करना हर ट्रांसपोर्टर का फ़र्ज़ है। पूरी दुनिया में ट्रैफिक कवानीन के ज़रिए कौमी तरक्की करती जा रही हैं। आपको इस बारे में तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, अपडेट कीजिएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के एक वफ्द ने मलिक शहजाद अवान की क़यादत में मुलाकात की है। वफ्द में मुख्तलिफ कंपनियों से तल्लुक़ रखने वाले ट्रांसपोर्टर्स मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियां ड्राइवर जरात को हिदायत करें कि तेज रफ्तारी से ग्रेज करें ताकि मुख्तलिफ हादसा से बचा जा सके। गवर्नर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में माल बरदार गाड़ियों से शहरों में लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी की शयाएं फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर अमल करना हर ट्रांसपोर्टर पर फर्ज है। पीपल्स पार्टी ट्रांसपोर्टर के साथ है, इनके दरपेश मसाइल हल करने के लिए इनके साथ खड़ी है। माल बरदार गाड़ियां शहरों में दाखिले के वक्त पाबंदी करें। गुड ट्रांसपोर्ट कानून के मुताबिक अपनी गाड़ियों पर सामान लोड करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने से जानी नुकसान हो रहे हैं। जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के नुमाइंदों ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का टैक्स लेकर हुकूमत को टैक्स देती है और गुड ट्रांसपोर्ट को सहूलियात काम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी और बिला जवाब जुर्मानों से ट्रांसपोर्ट कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। गवर्नर पंजाब ने गुड ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने की भी कराई। जी ठीक है यासीन, आपका शुक्रिया।
किट में आटे और गंदम की कोई किल्लत नहीं। डीजी फूड अमजद हफीज का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में गंदम और आटे की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बना दी। रोजाना 15,236 मेट्रिक टन गंदम सब्सिडी निर्खों पर फ्लोर मिल्स को फराहम की जा रही है। आटे की मुसलसल फराहमी और मार्केट में इस्तेहकाम भी बरकरार है। मजीद उन्होंने क्या कहा वो जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। पंजाब अमजद हफीज का कहना है कि हुकूमत पंजाब की सूबे भर में गंदम और आटे की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाती है, जिसमें मार्केट में किसी किस्म की कोई किल्लत मौजूद नहीं है। इसी सिलसिले में रोजाना 15,236 मेट्रिक टन गंदम सब्सिडी नरखों पर फ्लोर मिल्स को फराहम की जा रही है, जबकि आबादी के तनासुब से सुबह की मजबूरी जरूरत का तकरीबन 70% बनती है। इस वजह से तलब फ्लोर मिल्स के अपने ज़खायर और निजी मार्केट से बआसानी पूरी की जा रही है और ये मिकदार सूबे भर में 10 किलो के तकरीबन 10,72,820 आटे के थैलों की बराबर है। आटे की मुसलसल फराहमी और मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा हुआ है, जबकि हुकूमत पंजाब गंदम की सप्लाई, स्टॉक और मार्केट के सोटिया पर मुसलसल नजर रखे हुए है। सूबे भर में गंदम और आटे के वाफर में मिकदार दस्तयाब है। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, लाहौर समेत सुबह भर में ट्रैफिक हादसात में 15 अफराद जाँ बहक हुए। 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 465 अफराद जख्मी हुए। वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में सेहत की सहूलत घर की दहलीज तक पहुंचाने का आज़म। सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट जल्द फंक्शनल होगा। झंग, मियांवाली और बुहाड़ी में कैथ लैब जल्द फाल कर दी जाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट का आगाज होने को तैयार। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर झंग, मियांवाली और विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएगी। बखर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक्सिंग में फेज 2 में कैथ लैब फंक्शनल कर दी जाएंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मैसर होगी। कैथ लैब के कयाम से 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुँचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है, हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीज को दूर दराज बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिलाई सतह पर कैथ लैब बनने से हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी और बड़े अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर शहरी के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहम करने का वादा जरूर निभाएंगे। जिलाई कार्डिक कैथ लैब में फराइज अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को स्पेशल पे पैकेज का फैसला किया गया है। वजीर आला मरियम नवाज की जिलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डिक डॉक्टरों की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत।